Good morning, dear students. So, here in this topic, we are going to start grammar par. Again, a part of the magic of words. What is grammar? Already, you people are doing in English, Hindi, and Punjabi, all languages. Grammar is a set of rules that explain how words are used in language. So, you have to learn this also and write it in your GK notebook. What is grammar? Grammar is a set of rules that explain how words are used in language. Language में words को कैसे use करना है, as a noun, as a verb, as a preposition. These things are told by some rules. Some rules are there, according to that we use these words. Each language has its own distinct grammar. हर language की अपनी अलग grammar होती है. We have some antonyms in the A part. What are antonyms? Antonyms are actually opposite words, right? So here one line is given, some words are highlighted. You have to write antonym of that. You have to choose antonym of that from the given words. So here it is, many reactions take place in the blast furnace simultaneously. Blast furnace में बहुत सारे reactions simultaneously means at the same time take place. बहुत सारे रिएक्शंस हो गए ब्लास्ट फर्नेस में एट द सेम टाइम. तो इसका आपने ऑपोजिट ढूंढना है इनमें से. दिस इज एट द सेम टाइम, सो सेपरेटली विल बी अपार्टली, मीन्स एट डिफरेंट टाइम्स. ओके, सो हियर दिस इज द एंटोनिम ऑफ साइमल्टेनियसली. देन नेक्स्ट इज miscellaneous items were discussed at the meeting. Miscellaneous means extra. Some are special items, specific items, and here miscellaneous items were discussed at the meeting. Opposite to miscellaneous will be single. Single is some specific item that is discussed. Okay, so antonym of miscellaneous is single. Next we have, he has been acquitted of the charge of theft. He has been acquitted. Acquitted means he has been discharged. वो थेफ्ट के चार्ज से डिस्चार्ज हो गया है. अब इसका ऑपोजिट कन्विक्टेड. कन्विक्टेड मीन्स टू डिक्लेयर गिल्टी. ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी फॉर द चार्ज ऑफ थेफ्ट. तो इसका हमने ऑपोजिट लिया कन्विक्टेड. नेक्स्ट इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड हर कंडोनिंग सच एन एक्ट. वट इज़ कंडोनिंग? कंडोनिंग मीन्स बीइंग एग्री विद समथिंग. इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड हर कंडोनिंग सच एन एक्ट. उसको इस काम में साथ देते हुए बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है. तो इसका ऑपोजिट कंडेमनिंग. कंडेमनिंग मीन्स नॉट अप्रूविंग, हैविंग सम डिसअप्रूवल. सो इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कंडोनिंग. हिज फ्रिवलस रिमार्क्स प्रोवोक्ड नो कमेंट्स. फ्रिवलस मीन्स केयर फ्री, फिजूल की चीज़ें, राइट. और इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? सीरियस. इट इज़ केयरफुली remarked. Serious means something careful. Okay, so here I'll tell you how you have to write these antonyms in your notebook and then you can learn it. Just see how to write. So students, next part we are going to start change into passive voice. Passive voice means here subject will be in the passive form. See, first of all you have I have done this work. This have tells you that this is the present perfect tense. Present perfect tense में हम voice कैसे change करते हैं active to passive? Just see, present perfect tense means subject is there, has have is there, third form of verb is there, then object is there. What you have to do in voice, object will change to subject and subject will change to object. Means object जो पीछे है वो आगे आ जाएगा, subject जो आगे है वो सबसे पीछे चला जाएगा, right. Then what you have to do, has have as it is, according to subject you can change has or have. Then you have to apply here been. आपने been लगाना है has have के साथ. Third form is there, third form will be there. देन सब्जेक्ट विल कम बैक. सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे तो उसके आगे बाय आ जाएगा. तो अब आपका सेंटेंस क्या बना? दिस वर्क. ऑब्जेक्ट आपका आगे आ गया. दिस वर्क हैज़ बीन. हमने हैव की जगह हैज़ क्यों लगा दिया? बिकॉज दिस इज सिंगुलर. दिस वर्क हैज़ बीन डन. अब आई का बैक में जाएगा तो मी बनेगा, उसके आगे हमने बाय लगा देना. दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी. ओके, आपने याद क्या रखना है? अगर हैज़ हैव लगा हुआ है सेंटेंस में, हमने उसके साथ बीन लगाना है.
बाकी आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने इंटरचेंज करना है. सेकेंड सेंटेंस यू हैव क्लोज द टैप. व्हाट इज इट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट इज देयर. सच सेंटेंसेज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में वॉइस चेंज करने के लिए हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला है. व्हाट इज गिवन? फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. यू विल अप्लाई द फॉर्मूला लेट plus object plus be, then third form. Now let, what is the object? The tap. Let the tap, then be is there. After that third form. Close was the first form, closed. Let the tap be closed. This is your passive voice of the given sentence. Next you have I am reading this book. Which sentence is this? See, ing form is there. I am reading this book. This is a continuous sentence. In a continuous sentence you are having is MR plus ing form. आपको पास फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा है. आपने क्या करना है, इस ing को being में चेंज करना है. ओके, फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू थर्ड फॉर्म और ing का हमने क्या करना है, being लगा देना है. बाकी सारा एज इट इज. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा. इज एम आर हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे. जस्ट सी, आई एम रीडिंग दिस बुक. अब दिस बुक को हम आगे लेके आए तो दिस बुक इज बीइंग, आई एन जी का क्या बता देना, बीइंग. दिस बुक इज बीइंग. देन रीड, रेड, रेड थर्ड फॉर्म इज अगेन सेम. बाय, आई का क्या बन जाता है पीछे जाके, मी. सो दिस इज. Next, someone ate my cake. In this sentence you have second form. When second form is there, it means it is past indefinite. Past indicates the was and were. It means इस sentence में हमने अब क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब आपके पास second form given है, subject second form object, means it is a past indefinite tense. आपने इसको वॉइस कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सेकेंड फॉर्म की जगह हम वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे. सेकेंड फॉर्म चेंजेस टू was were and third form, then by the subject. तो आपका सेंटेंस है someone ate my cake. It will change into my cake was eaten by someone. हमने क्या किया, सेकेंड फॉर्म को was थर्ड फॉर्म बना दिया. नेक्स्ट यू हैव he eats fruits daily. अब eats क्या है, फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या लगा है, s. तो इट इंडिकेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इट मीन्स हमें गिवन है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ है सी एस एंड ऑब्जेक्ट. देयर आर सम एक्स्ट्रा वर्ड्स लाइक डेली. तो आपने क्या करना है, सेम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे. जब फर्स्ट फॉर्म के साथ है सी एस है, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर लगाएंगे. सेकेंड फॉर्म थी, इट मीन्स वॉज वर, पास्ट के लिए लगाया. अब फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के लिए आपने इज एम आर को याद रखना है. फर्स्ट फॉर्म एस ई एस विल चेंज इनटू इज एम आर थर्ड फॉर्म. तो आपका सेंटेंस बना ऑब्जेक्ट दैट इज फ्रूट्स. फ्रूट्स अब ये प्लूरल है तो आर लगेगा. फ्रूट्स आर ईटन बाय, ही का पीछे जाके क्या बना, हिम. फिर जो भी आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो आपने एंड में डाल देने डेली. दैट्स ऑल अबाउट बी पार्ट. लेट अस कंटिन्यू विद सी पार्ट. सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डू सी पार्ट, दैट इज चेंज इनटू एक्टिव वॉइस. अब हमने पैसिव गिवन है और हमने एक्टिव में चेंज करना है. सी हियर इट इज ही हैड बीन हिट बाय अ कार. बीन इंडिकेट्स दैट इट इज अ पैसिव वॉइस. अब हमने बीन को रिमूव कर देना है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म कंटिन्यू करेंगे. अ कार आगे आ जाएगा, ए कार हैड हिट, ही का क्या बन जाएगा पीछे जाके, हिम. नेक्स्ट यू हैव यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग. सी सिंग अ सॉन्ग इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस. हमने उसके आगे टू लगाया, हियर इट इज अ रिक्वेस्ट. सो यू आर रिक्वेस्टेड को हम रिप्लेस करेंगे प्लीज के साथ. प्लीज, दिस इज द सेम, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, दिस इज द एक्टिव वॉइस नाउ. नेक्स्ट, ही इज चेक्ड बाय हिज डॉक्टर डेली. हियर दिस शोज यू इट इज अ पैसिव, यू हैव टू चेंज इनटू एक्टिव. इज के साथ आपके पास थर्ड फॉर्म है. हमने प्रीवियस बी पार्ट में क्या किया था, जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने इज लगाया था. तो यहाँ हम इज हटा के इज चेक्ड को क्या बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म, दैट इज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस. हिज डॉक्टर को आगे लेके आएंगे. हिज डॉक्टर इज चेक्ड का बना चेक्स. हिज डॉक्टर चेक्स, ही इज रिप्लेस्ड विद हिम. हिज डॉक्टर चेक्स हिम डेली. वट एवर एक्स्ट्रा वर्ड इज देयर, रिप्लेस दैट. Then he is being followed. Now see, this being is telling you it is a passive voice. Don't think इसमें by नहीं है. Okay, so the
subject is missing, we can take he is being followed, let it be by someone. It is not given, so you can just take it as by someone. So it is now someone. See, is there, take it is. Being है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, being थर्ड फॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय इंग फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने इंग लगा देना है. फॉलोइंग, समवन इज फॉलोइंग, ही का क्या बन जाएगा, हिम. Then last is she had been chosen the best girl. Now again object is missing. She had been chosen the best girl. Let it be by the jury. Jury ने उसको best girl choose किया है, तो the jury had chosen. हम been को कट करेंगे, had been third form will be replaced with only had and third form. The jury had chosen her. She का क्या बनेगा पीछे जाके, her. क्या किया जूरी ने चूज, द बेस्ट गर्ल. द जूरी हैड चूजन हर द बेस्ट गर्ल. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पेज. थैंक यू स्टूडेंट्स. रिवाइज इट केयरफुली. मस्ट फोकस ऑन रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.